Good evening, friends. Once again, welcome to this GST Gyan Ganga series. Our eminent expert, C. Achal Kapoorji from Amritsar with us. So, welcome to you, ma'am, on this Team Kasa channel. And always ready to give your time to participant, to members at last. So, thank you very much from the core of my heart and from the entire team. And co-panelist of the today's session, CA Nikhil Jawarji from Jaipur. He is also good speaker in this GST and always ready to deliver our GST show regularly. So welcome to you. And today's topic is also important. So definitely we will learn something new on the topic classification tax rate related issues. So whatever query you have, you can post in the chat box. Nikhil ji will take care of the issue. And before starting of the technical session, I request Nikhil ji to say a few words. Thank you very much, Sumitji, and for organizing this wonderful conclave. And today is the second day of mega conclave, and we are lucky and we are blessed today that we have Achal Kapoorji with us. So today's topic is very interesting, and I would say it is one of the most untouched topics. Wherever webinars are happening, we will see that the discussion on this particular aspect of classification and tax related issue is very less. Although from GST point of view, as a professional, as a businessman, this is the first step whenever I am starting my business. When I am adding new product lines, I need to see what is my product, where it will be classified under GST. So it is very important to rightly classify your product as per the applicable HSN code and SSC codes, so that we can apply appropriate GST rates and there is no issue from the department as a supplier as well as a recipient. And recently from 1st of April 2021, HSN code, there has been changes in HSN code updation, wherein we need to, now report 6-digit and 4-digit. So we can see even in future, the department and the government has an intention, because even for the department, the data comes from the HSN, so that they can identify what kind of classification and what kind of supplies which are being happening. So without wasting much of time, now I will request Achal ji to start their technical session, and definitely we will be enrichment with her session. Yeah, over to you, ma'am. Thank you so much. First of all, I'm very thankful to CASA for giving this opportunity to me to be the part of this conclave, GST conclave. And Sumit ji, I always say about your platform, I know this platform ever since even before the lockdowns, because I still remember when I used to come early in the morning by 8:30 after dropping my daughter to the school, and I used to add that extra 30 minutes. Because the office used to open by 9 and I used to come by 8:30. The only thing I used to do was to open the CASA platform and to check for the videos, what are available, and used to listen that. And that's such a good initiative, which you are right now also carrying on. So a great service to the profession indeed. And secondly, today giving me this opportunity to deliberate in the presence of you, yourself, of course, and none other than Nikhilji also is going to be my co-speaker. And it's my pleasure to deliberate in his presence, and especially when an intellect is with you, so you also feel the 50% burden which shifting on the another. So Nikhilji, your presence will be of extreme importance. Thank you so much. And none other than the participants for the day who have spared their time, and we hope that me and Nikhilji, we both will be able to satisfy their queries, their doubts, and the issues that crop up from the current topic. Now, moving towards the topic. Yes, as Nikhilji very rightly mentioned, classification is one of the very important topics, my dear friends. Why I say so? When I say so, reason, first and foremost thing, you check when you go for the classification, when you go for the GST, rate kya lagna hai? And rate kya lagna hai is what is classification. My dear friends, what I have felt, many a times people send me a WhatsApp or gives me a call on WhatsApp and ask me, ki
इसका रेट बता दीजिए. आई गिव यू एन एग्जांपल. मिल्क का रेट बता दीजिए कि मिल्क तो टैक्स फ्री है ना, मिल्क पे कोई टैक्स नहीं है. I say to you professional one thing, friends, classification is only not a topic. Classification is a proper stream in GST, total stream in GST. Reason, you might be surprised to know that there are certain professionals who only and only work in the field of classification in GST. There are at present more than 10,000, around 12-13,000 cases that are still pending with the Supreme Court regarding the pre-GST regime, just on a matter of classification. So see where the cases travel up to the Supreme Court level, up to the High Court level, the matter relating to the classification travels. Huge impacts. Now in post-GST regime also, the notices, I myself have got a number of notices for my clients where the department has challenged the rate of tax being used due to the wrong classification. And you know what? The liability is standing since 2017-18. और ये भी छोड़ दीजिए, even imports, sir, high level of imports हो रही है पार्टी की, and this says कि आप जब import कर रहे हैं, आप IGST जो pay कर रहे हैं, you are paying at a rate of 12% by classifying in so and so HSN product, whereas the correct HSN is this and the rate applicable is 18%. उन्होंने 17-18 से along with interest demand निकाल. Sir, professionals, they charge somewhere from 50,000 to 1 lakh plus just to tell the rates. So why I'm saying so, don't be so casual in giving the rates. We took the example of milk. और आपको पता है milk पे कितनी ARs हैं? So I'm opening my chat box, right? And I want to see all of you typing something in the chat box. At least we should also feel कि सिर्फ निखिल जी मैं और सुमित जी नहीं है. You all are with us, and we are not interacting with this black box only. So friends, हाँ, अच्छा चलिए बताइए मिल्क पे रेट क्या है? आज मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ. And I will pay the fee also. Okay. So what is the rate of tax on milk? Anybody who can mention anything? एक तो मैंने ही बता दिया. Right, Gaurav ji, you are first to answer. Absolutely correct. 0%. Vanshad ji also said 0%. Anybody who says something else? No, I say something else. And that something else is rate on milk can be 5%, can be 12%, can be 18% also. Now I tell you how. When I said milk, absolutely, Deepak ji and Gaurav ji, I didn't mention you that whether it is a flavored milk, it is a milk with nuts, what sort of milk it is. So lots of examples. I give you one more example and we will find out the answers for all the questions. You or your family member somewhere, sometime must have used Odomos. Odomos use करते हैं ना? अच्छा स्वाद की गोली तो खाई होगी. स्वाद की गोली तो अच्छी लगती है. राहुल जी कहते हैं हाँ आजकल तो वैसे ही मस्किटोस का सीजन है तो आजकल तो हम ओडोमोस बहुत यूज करते हैं. राइट राम अवतार जी, अब इधर से भी जवाब चाहिए आपसे. सो जब हम बात करते हैं ओडोमोस की, माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज, एक मेडिसिन है या एक ऑइंटमेंट, एक नॉर्मल क्रीम है? इज इट अ कॉस्मेटिक और इट इज अ मेडिसिकमेंट? चलिए एक और देख लेते हैं. स्वाद की गोली खाते हैं हम. स्वाद की गोली is a medicament or it is normal sweet toffee, what we call as. इतने issues है सर क्लासिफिकेशन में और आप सब ने कहीं ना कहीं इसकी हीट फेस की है. कब? कोविड में. गवेश नरूला जी, कॉस्मेटिक है या नहीं है अभी 2 मिनट में आएंगे जब हम केस स्टडीज डिस्कस करेंगे विद प्रॉपर ऑथेंटिकेटेड केस लॉज. बाद में आपको ये ना लगे कि ये तो अपनी मर्जी से कह दिया. Right, and good to see you here, sir. Friends, what I want to tell you, classification is not that direct an issue which we think. हमें उसका आंसर सीधा मिल जाता है, क्लियर कट मिल जाता है, that's good. But we need to check. मैं आपको 2 इंसिडेंट्स बताती हूँ. सबसे पहले WHO के 3 एडिशन आए थे, 3 editions by WHO when we were talking about that the hand sanitizers which we are using will fall under 12% or 18%. This is the relevance all across. Then they said 70% से ज्यादा अल्कोहल हो तो रेट ये लगेगा, 70% से कम अल्कोहल हो, we will be discussing that.
सेकेंड, जब इस बार 1 अप्रैल 2021 से गवर्नमेंट ने कह दिया 5 करोड़ से नीचे 4 डिजिट HSN यूज करना है एंड 5 करोड़ से ऊपर आपको 6 डिजिट HSN यूज करना है, तो 2 प्रॉब्लम्स आई थी सबको. यू नो व्हाट? पहली, एक तो पहले फैब्रिक का एग्जांपल देती हूँ. आई वॉज टू सिट विद माई क्लाइंट, डिसाइड कितने GM के उनके, कितना थ्रेड लग रहा है, कितना नायलन लग रहा है, कितना. इट इज नॉट अ थिंग माय डियर फ्रेंड्स which we only professionals can decide. The party needs to sit, the party needs to tell the ingredients and then we have to decide ये कितने % का प्रोडक्ट बनता है. सेकेंड डिफिकल्टी जो अभी आई थी अप्रैल 2021 में, दैट वाज कि मेरे को जो रेट में लगा रही हूँ मुझे 6 डिजिट HSN ही नहीं मिल रहा है, और वो क्यों नहीं मिल रहे थे वो भी मैं आपको बताऊंगी. ओके, बिफोर आई मूव टू क्लासिफिकेशन, आई वांट टू ऑल ऑफ यू टू राइट, क्या कस्टम्स, अच्छा क्या ये HSN कोड्स वर्ल्ड अक्रॉस सेम है? लेट मी शेयर द स्क्रीन ऑल्सो, फिर आपको ये ना लगे PPT इज नॉट देयर. एंड निखिल जी, you being my co-speaker, wherever you have difference in any opinion, and that is what the beauty of GST is. Every opinion is a correct opinion. So you are most welcome to share your views and add on to that. Right, friends. So I hope you can see both me and Nikhil ji and along with my PPT, and let me open the chat box too. Yes, great. चलिए. So friends, अगर मैं classification की बात करूं, lots of problems pop up. What? पहली बात, I always start कॉन्स्टिट्यूशन से. सबसे पहले क्या कॉन्स्टिट्यूशन, एंड यू कीप ऑन राइटिंग इन द चैट बॉक्स. आई विल लव टू सी योर ऑल योर नेम्स फ्लैशिंग ऑन माय स्क्रीन्स, यू नो. सो आप मुझे बताइए, क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन की जा सकती है? एक बच्चे को कम मार्क्स और दूसरे को ज्यादा, एक पे 18 एक पे 12, इज इट द क्लासिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड? पहले तो हम ये सीख करते हैं. सेकेंड, क्या GST की अपनी क्लासिफिकेशन है? अब इसका आंसर तो मुझे आपसे चाहिए. क्या GST की अपनी क्लासिफिकेशन है या ये कहीं से बोरो करता है? जी नहीं, GST की अपनी क्लासिफिकेशन नहीं है, ये कस्टम एक्ट से बोरो करता है. यस, एब्सोल्युटली विनोद जी, एब्सोल्युटली मिस्टर नरूला, यू ऑल आर करेक्ट. क्या होगा अगर मैं गलत क्लासिफिकेशन कर दूं? क्या कॉन्सिक्वेंसेस अराइज हो सकते हैं? क्वेश्चंस लाइक ये पर्टिकुलर चीज स्वीट है कि नहीं है. एग्जेम्पशंस, यू नो माय डियर फ्रेंड्स, एग्जेम्पशंस बड़ी इंपॉर्टेंट मायने रखती हैं. आई टेल यू हाउ. अगर मैं एग्जेम्पशंस की बात करूं ना, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ, ऑल विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स. एक स्कूल ने एक क्वेश्चन पेपर्स प्रिंट करवाए, एग्जेम्पशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यू नो दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन ऑफ क्लासिफिकेशन. हाउ कम? पहले तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो क्वेश्चन पेपर स्कूल ने प्रिंट कराए, ये गुड्स हैं या ये सर्विस हैं? अगर तो गुड्स है तो माय आंसर इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, नो एग्जेम्पशन बेनिफिट. अगर ये सर्विस है देन आई विल थिंक, सो क्या इशू है? क्लासिफिकेशन इशू. हॉस्पिटल्स का हम देखते हैं, एक बेड प्रोवाइड कर रहे हैं, मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या क्लासिफाई करूं? कॉम्पोजिट सप्लाई करूं या इसको मैं एक सेपरेट सप्लाई करूं? ये गुड्स और सर्विसेज दो सेपरेट सप्लाई मानूं? अ क्वेश्चन अगेन रिलेटेड टू क्लासिफिकेशन. मेडिसिकामेंट है या कॉस्मेटिक्स है? GST टैरिफ्स कहां से लूं? कैमरा और फोन, मैंने फोन बाय किया बट कारण पता है क्या था? कैमरा बहुत अच्छी क्वालिटी का था. क्या बाय किया? कैमरा के फोन. कौन सा रेट लगाएं? रीजन 32 मेगापिक्सल कैमरा, जो आजकल प्रोफेशनल कैमरास में नहीं है, मतलब जितना भी होता है, ये मत बोलना 32 नहीं होता. सो द क्वेश्चन like this arises. Goods है, services है, 3-piece dupatta set है. Let's somewhere talk about the ladies products too. So 3-piece dupatta sets है. Where to classify? Shirt is unstitched, the bottom is unstitched, but the dupatta is a finished product. That is a ready-made garment. Such questions when arise, we need to find out the answer of these. All these questions are fit cases of classification, and my dear friends, a number of notices for GST classification are issued nowadays. सबसे पहले शुरू करते हैं. अच्छा, आप सबने, विनोद जी ने, नरूला जी ने, आपने लिखा कि भाई हम कस्टम से उठाते हैं.
तो एक बार बताइए, सैक कोड कहां से उठाते हैं? क्या कस्टम से उठाते हैं कि जीएसटी के अपने सैक कोड्स हैं? क्विक क्विक आंसर, जितने क्विक आपके आंसर्स आएंगे उतने ज्यादा पॉइंट्स हम कवर कर पाएंगे इकट्ठे। सो अच्छा, सर्विस टैक्स से? नो नो मिस्टर नरूला, सर्विस टैक्स से कुछ नहीं उठा रहे हम, नॉट फ्रॉम सर्विस टैक्स फ्रेंड्स। इसके कोड्स, पहली बात, जो हमारे HSN कोड है ना, दीज आर द हार्मोनाइज्ड सिस्टम। अनुज कक्कड़ जी, WTO क्लासिफिकेशन पे भी आऊंगी, डोंट वरी, बट दिस इज नॉट एग्जैक्टली द WTO क्लासिफिकेशन। आप जिस WTO क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, दैट इज ऑफ कस्टम्स which has been given by World Trade Organization Brussels. That is given by, that is HSN that have been given. Friends, HSN इंटरनेशनल ट्रेड के लिए यूज होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स, ये वर्ल्ड अक्रॉस सेम है, यूनिफॉर्मिटी। क्यों? आप बोलो जी इंडिया ने इंपोर्ट किया एक्स प्रोडक्ट और यूके ने भेजा वाई, नो। सो HSN इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड, बट सर्विसेज में ऐसा नहीं हुआ था अनुज जी। सर्विसेज के कोड्स आज भी हम यूनाइटेड नेशन के थ्रू उठाते हैं। Absolutely, Nikhil ji. Rate notification, you rightly mentioned that yes, it is CGST rate, but what is the base of that notification? वो अभी next slide में हम discuss करेंगे कि United Nation के किस डॉक्यूमेंट से सर्विस टैक्स के कोड्स उठाए गए हैं और क्या डिफरेंस है HSN और SAC कोड्स में, राइट? चलिए have a look. सबसे पहले क्लासिफिकेशन, आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, बट ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अब आई एम अ 10th क्लास स्टूडेंट एंड मिस्टर एक्स और चाइल्ड एक्स इज अ फर्स्ट क्लास स्टूडेंट एंड दे शुड बी गिवन द सेम क्वेश्चन पेपर, नो। सो अगर मैं इसको आर्टिकल 14 की लाइट में चेक करूं, यस, दिस इज अ वैलिड प्रोविजन, आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, बट प्रोवाइडेड इट इज बेस्ड अपॉन रैशनल डिस्टिंक्शन, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। क्या? 10th क्लास के बच्चे अलग कर दीजिए, फर्स्ट क्लास के अलग कर दीजिए, देन 10th क्लास के ग्रुप को, वन ग्रुप इज फॉर्म्ड, वन क्लास इज फॉर्म्ड, आप उनको एक जैसा क्वेश्चन पेपर दीजिए और दूसरों को एक जैसा दीजिए, फर्स्ट क्लास के बच्चों को एक जैसा दीजिए। लाइकवाइज मैं जीएसटी में भी लगाती हूँ, आप नेसेसिटीज को अलग कर दीजिए और लग्जरी आइटम्स को अलग कर दीजिए, एंड देन यू एज पर दैट ग्रुप आप उनको इक्वालिटी दीजिए। तभी कहते हैं इन अ कंट्री, डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, कभी भी एक रेट नहीं हो सकता जीएसटी का। वी हैव टू कीप द स्लैब्स, वी हैव टू क्लासिफाई। सो बेस्ड अपॉन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, बेस्ड अपॉन, आपको पता है जो रिफंड का केस आया था टीवीएस एफकॉन का, उसमें भी आर्टिकल 14 के लाइट में चैलेंज किया गया था कि आप you are giving two types of distinction to exports and second type of distinction to the IDS in inverted duty। वहां पे भी उन्होंने कहा आर्टिकल 14 ये नहीं कहता सब कुछ बराबर है, आर्टिकल 14 ये जरूर कहता है एक क्लास के लिए बराबर है। सो इन लाइट ऑफ दैट क्लासिफिकेशन की जा सकती है बिकॉज इट इज बेस्ड अपॉन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। चलिए, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर निकलते हैं तो हमारा सेकंड स्टेप आता है ऑलवेज द चार्जिंग सेक्शन। सो दो चार्जिंग सेक्शन है, सेक्शन 9 और सेक्शन 5। सेक्शन 9 में अब देखिए कहां क्लासिफिकेशन के इश्यूज आते हैं। सबसे पहले लेवी, हम कुछ भारी भारी हैवी हैवी सा कुछ नहीं पढ़ेंगे, वी विल बी रीडिंग ऑल लाइट मटेरियल एंड ट्रस्ट मी, बी विद मी, यू विल लाइक द थिंग्स, क्योंकि शायद वो हम इतना ज्यादा अप्लाई तो कर देते हैं बट कहां लिखा है हमें पता नहीं हो। नाउ लेवी जो है वो डिटरमाइन होती है कि एक पर्टिकुलर चीज सप्लाई है कि नहीं है, राइट? सप्लाई है कि नहीं है कहां से पता लगता है? सेक्शन 7 से पता लगता है और शेड्यूल 1 और 3 से लगता है, 1 और 2 से नहीं लगता। 2 शेड्यूल नहीं बताता कि लेवी होगी कि नहीं होगी। अमेंडमेंट हो चुकी है फरवरी 2019 ऑनवर्ड्स विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, एक्ट अमेंड कर दिया था। शेड्यूल 2 नहीं बताता लेवी है या नहीं है, शेड्यूल 2 बस इतना बताता है लेवी हो गई तो बताओ गुड्स है कि सर्विस है। सो सबसे पहला स्टेप उसमें यूज होता है शेड्यूल 1 और सप्लाई की डेफिनेशन। जैसे ही आप कहते हो जी हाँ एक पर्टिकुलर चीज सप्लाई बन गई है, देयर द वर्क ऑफ क्लासिफिकेशन स्टार्ट्स।
रेट क्या लगाऊं, गुड्स का या सर्विसेज का? गुड्स का लगाऊं, सर्विसेज का, कि मिक्स्ड और कॉम्पोजिट सप्लाई बनाऊं? हियर कम्स द रोल ऑफ शेड्यूल 2, जो हमें बताता है गुड्स हैं या सर्विसेज. एंड देन वी मूव ऑन टू एग्जेम्पशंस. और एग्जेम्पशंस में भी क्लासिफिकेशन, मैंने अभी एग्जांपल दिया था स्कूल के क्वेश्चन पेपर्स का, डोंट वरी, वो केस लॉ भी हम डिस्कस करेंगे, गुड्स बनेगा कि सर्विस बनेगा, राइट? चलिए अब आगे चलते हैं. हियर इट इज माय डियर फ्रेंड्स, गुड्स के रेट्स नोटिफिकेशन 1/17 में दिए हैं. आई नो यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट एंड यू नो 1/17 में रेट्स है, 11/17 में एग्जेम्पशंस है गुड्स की. लाइकवाइज 2/17 में एग्जेम्पशंस है. लाइकवाइज सर्विसेज के केस में 11/17 में रेट्स है और 12/17 में उसकी एग्जेम्पशंस है. इतना तो पता है हमें. गुड्स, फ्रेंड्स, गुड्स का नोटिफिकेशन 1/2017 में सीटी रेट नोटिफिकेशन में HSN वाइज क्लासिफिकेशन है. This is a uniform codes which are given by World Trade Organization Brussels and are followed same the world across. और ये नोटिफिकेशन तो आप सब ने 1/17 बहुत बार पढ़ी होगी, many a times, लेकिन उसके नीचे ये 2 लाइंस शायद कभी स्किप ना कर दी हो. फॉर द पर्पस ऑफ दिस नोटिफिकेशन, टैरिफ आइटम, सब हेडिंग, हेडिंग, चैप्टर shall mean first schedule to the Customs Tariff Act. मैंने कस्टम एक्ट नहीं कहा. First schedule to Custom Tariff Act 1975 is a separate act as to Custom Act 1962. उन्होंने बोला आप उसके फर्स्ट स्केड्यूल से रेट उठा लीजिएगा. और सिर्फ ये नहीं बोला, इसके नीचे एक और लाइन लिखी थी, रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन भी लग जाएंगे जो कस्टम टैरिफ एक्ट में लगते हैं अगर आपको कोई रेट नहीं मिल रहा है तो. इसका मतलब ये 2 चीजों का कह रहा है. हमने तो कभी फर्स्ट शेड्यूल टू कस्टम टैरिफ एक्ट खोल के नहीं देखा और ना ही हमने रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन देखे हैं. आप सब रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन कहीं ना कहीं लगाते हो, बट आज वी विल स्टडी हाउ मेनी रूल्स. कैन एनीबॉडी टेल मी हाउ मेनी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन आर देयर? एंड ओके, विनोद शर्मा जी कहते हैं 6 रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन आर देयर. ग्रेट विनोद जी. यस, there are a number of rules of interpretation which are to be followed in a particular sequence. 1 नहीं लगेगा तो आप 2 पे जाएंगे, राइट? और कितने पेजेस का? छोटा सा है ना फर्स्ट शेड्यूल, छोटा सा. No, I will tell you how to read this schedule also. First schedule, friends, it minimum runs into 800 pages without any commentary. और क्लासिफिकेशन के ये जो कस्टम के पॉइंट्स हैं, यू नो, ये जो कमेंट्रीज आती है, जो इनके प्रॉपर आते हैं, द बुक्स रन्स इनटू समवेयर अराउंड जस्ट 2 lakhs 3 lakhs. Such an expensive books which are there only and only on the classification issues, right? जैसे गुड्स के रेट कस्टम से मिल जाते हैं, सर्विसेज के नहीं मिलते क्योंकि सर्विसेज का कस्टम से कोई लेना देना नहीं है, राइट विनोद जी? तो कहां से मिलते हैं सर्विसेज के रेट? फ्रेंड्स, देयर इज अ सर्विस कोड टैरिफ नोटिफिकेशन, एज निखिल जी हैज राइटली मेंशन्ड, 1/2017 में दिए हुए हैं. लेकिन इसके ऊपर यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन ने एक सेंट्रल प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन दिया था. This classification is just for reference purpose, but India has adopted the SAC codes from United Nations Statistical Commission का जो document classification है, Central Product Classification, and 11/17 is akin to it. ये वहां से लिया गया है और उसके ऊपर हमारे सर्विस टैक्स के रेट्स भी बेस्ड थे, हमारे सैक कोड्स भी बेस्ड थे, इसी के ऊपर हमारे सैक कोड्स ऑफ जीएसटी बेस्ड है. बट ये वर्ल्ड अक्रॉस सेम है. ये बीइंग अ रेफरेंस मे और मे नॉट एग्जिस्ट सेम वर्ल्ड ओवर. चलिए अब हम जरा कस्टम टैरिफ एक्ट की बात करते हैं. फ्रेंड्स, कस्टम टैरिफ एक्ट में 2 स्केड्यूल्स हैं, बट हमें कौन सा स्केड्यूल रेफर करना है? जल्दी से बता दीजिए. ओनली स्केड्यूल 1.
हमें एक्सपोर्ट टैरिफ एक्ट को रेफर नहीं करना है. फर्स्ट स्केड्यूल 2 ऑफ जिसमें इंपोर्ट टैरिफ्स के रेट है, बिकॉज एक्सपोर्ट टैरिफ इज मेनली एग्जेम्प्ट. फ्रेंड्स, सारे रेट हम इंपोर्ट टैरिफ से उठाएंगे, लेकिन जीएसटी में एक स्पेशल एंट्री है 9801, 9802, 02, 03 एंड 04. ये जीएसटी को स्पेसिफिक एंट्री दी गई है जो आपको कस्टम टैरिफ एक्ट से नहीं मिलेगी. सो प्रोजेक्ट इंपोर्ट के रेट्स स्पेसिफिक HSN 9801 irrespective of the classification of custom tariff act is a specific entry to GST tariff. So schedule 1 plus notification 1/17 9801 to 9804 deals with the specific entries and HSN code in GST. अच्छा जी, अब इसको पढ़ते कैसे हैं? I will show you. Do you want me to show that tariff here only right now or after some time? चलिए मैं आपसे स्क्रीनशॉट शेयर करती हूँ पहले, फिर मैं पूरा टैरिफ भी बताऊंगी, which runs into somewhere around 800 plus pages. फ्रेंड्स, सबसे पहला पार्ट होता है सेक्शन. सेक्शन के बाद चैप्टर, चैप्टर के बाद हेडिंग, हेडिंग के बाद सब हेडिंग, और लास्ट में इज द टैरिफ आइटम. हेडिंग इज ऑफ 4 डिजिट, सब हेडिंग इज ऑफ 6 डिजिट्स एंड टैरिफ आइटम. अब जल्दी से आप बता दीजिए टैरिफ आइटम कितने डिजिट्स का होगा, क्विकली, फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, नथिंग इन माय चैट बॉक्स. सर पोस्ट लंच सेशन है तो आपको रिप्लाई तो देना ही पड़ेगा. आई विल नॉट लेट यू यॉन इन बिटवीन. जल्दी से 8 डिजिट्स. यस, इट इज फॉर 8 डिजिट टैरिफ आइटम, 8 डिजिट का होता है. हैव अ लुक. सबसे पहले अगर मैं सेक्शंस की बात करूं, फ्रेंड्स, देयर आर 21 सेक्शंस. 21 सेक्शंस हैं, 98 चैप्टर्स हैं, तभी तो 800 प्लस पेजेस में रन करता है. आफ्टर दिस कम्स योर various other things after sections and chapters, but let me tell you, आप जब भी इसमें से कुछ चीज ढूंढने जाएंगे ना, सीक्वेंस पता है क्या है इसका? इसमें सबसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का ऑर्डर है. सबसे पहले आती है नेचुरल चीज. चलिए, कौन सी नेचुरल चीज होगी जिसका आप जीएसटी रेट सबसे पहले ढूंढेंगे? बताइए, व्हाट कैन बी द नेचुरल थिंग? व्हाट कैन बी द नेचुरल थिंग? लाइफ स्टॉक, एग्री प्रोडक्ट्स. विनोद जी बिल्कुल, बट अ सॉर्ट ऑफ रॉ मटेरियल. सबसे पहले योर नेचुरल प्रोडक्ट्स आर लाइक एनिमल्स, योर लाइव स्टॉक. यस, दिस starts with the livestock. If you are selling horses, if you are selling animals, what will be the rate? Then raw materials, then semi-finished products. और जैसे ही हम 21 sections में नीचे जाते जाएंगे, the finished products will start coming. Have a look on this. This is how the first section of our Custom Tariff Act looks like. अब देखिए, सबसे पहले सेक्शन, सबसे पहले सेक्शन पहला एनिमल, लाइव एनिमल्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स. आफ्टर दैट चैप्टर, आफ्टर चैप्टर चैप्टर नोट्स. वेरी इंपॉर्टेंट. कई बारी हमें नाम धोखा दे जाता है. सुखी राम हमेशा सुखी हो ऐसा जरूरी नहीं है, सुखी राम दुखी भी हो सकता है. सो द लॉ सेज चैप्टर के नाम पे मत जाना भाई, अंदर के चैप्टर नोट जरूर देखना. ये रूल भी मैं आज आपसे डिस्कस करूंगी. हो सकता है, अब एक बात सुनिए, एक चैप्टर है बाइक्स, मोटरसाइकिल्स. अब देखते हैं बच्चे का बाइक कहां जाएगा, राइट? सो वी विल फाइंड आउट. कुछ एक्सक्लूजन्स दी होती हैं चैप्टर के स्टार्टिंग में, एक्सेप्ट, उनको तो सबसे पहले पढ़ लेना, वो इस चैप्टर में चीज नहीं आएगी. अब देखो, लाइव एनिमल्स है तो आपको लगता है फिश भी तो लाइव एनिमल है, लेकिन चैप्टर नोट बोलता है इट कवर्स ऑल लाइव एनिमल्स एक्सेप्ट फिश. दिस इज द इश्यू ऑफ दिस. एनी अगर कोई स्पेसिफिक हेड है, एनिमल्स ऑफ 9508 इसमें नहीं आएंगे. So chapter notes are very important. After chapter 2 digits, we get the heading, which is of 4 digit. After the heading, we get subheading, which is of 6 digits. After this, we get this, which is the tariff item, the last in the list, which is of 8 digits.
राइट? आपको दिख रहे हैं कितने कॉलम्स हैं इसके? वी हैव 1, अच्छा दिखाऊं आपको, चलिए दिखाई देती हूँ, वेट अ मिनट। 4 डिजिट 6 डिजिट ये तो हमें सब पता लग गया, राइट? 5 कॉलम्स है, 1 2 3 4 5। अब आप मुझे बताइए, यहाँ एक यूनिट लिखे हुए हैं, क्या ये यूनिट हमारे लिए फॉलो करना मैंडेटरी है? यस और नो? और क्या ये रेट्स ऑफ ड्यूटीज हमारे लिए फॉलो करना मैंडेटरी है? द आंसर इज in customs. In customs, Rahul ji, not in GST. Not in GST. In GST, you don't have to use the same units, and ये जो rate of duty है ये भी customs के। हम क्या करते हैं कई बारी, we add on a column and put the GST rates so that you can get to know कि कौन सा product का GST में क्या rates है। So GST के लिए क्या relevant है? Tarified term and description. The other 3 columns are not relevant. इसके अलावा आपको dashes दिख रही हैं यहाँ पे, you can see the dashes. See the dashes here. ये देखिए। अब सर एक बात देखना, कुछ लोगों को, मैं डैशेस भी बताती हूँ, बट बिफोर डैशेस कुछ लोगों को 6 डिजिट कोड नहीं मिले थे। क्यों नहीं मिले थे? नाउ यू सी, यहां पे कई बार क्या होता है, यहां तो 6 डिजिट कोड आ रहा है और उसके बाद 8 डिजिट कोड आ रहा है। कई में 4 डिजिट के बाद आपको सीधा क्लासिफिकेशन मिलता है और आपको उसका सब यहां पे, ये देखिए ये। अब अगर आपने हॉर्सेस का प्योर ब्रेड ब्रीडिंग एनिमल्स देखने हैं, आपको उसका डायरेक्टली 8 डिजिट कोड मिल रहा है ये। सो दैट इज व्हाई कई बार हम जब सर्च करते थे तो वी से इसका तो 6 डिजिट कोड ही नहीं है। I hope you are getting that. Other than that, these dashes play an important role. Why important? आपको जब भी रेट कंफर्म करना है, क्लासिफिकेशन में कोई भी इशू है, there are 3 types of dashes: single dash, double dash and triple dash. कभी भी सिंगल डैश को डबल डैश के साथ कंपेयर नहीं करना, डबल डैश के रेट को ट्रिपल डैश के साथ। Just a minute, sir. Am I audible? Yes. Ma'am, you are audible. Perfectly okay. Just a minute, sir. Just a minute. I don't know. There was certain message displayed that you have been logged out of the Zoom. Okay. Anyhow, if I am audible, that's perfect. Okay. Okay, Bharat ji, you lost for a second. Okay, that might be the reason I got this message. Anyhow, so friends, single dash, double dash or triple dash. If we have single dash, compare it with single dash. If we have double dash, compare it with double dash. Here, 1 level, 2 level, 1 level, 2 level and 3 level. कभी भी दूसरी तरह से compare नहीं करना है. Here are the examples of the sections that I've given to you. Have a look. Like section 1, live products. Section 2, जैसे अभी सर ने बोला था, agri products, vegetable and vegetable products. When you keep on increasing and you go to the 11 number, you get textile and textile products. 12, you get footwear and headgears. So as and when you keep moving down the process, manufacturing process items, the finished products will start coming in. So this is the way we'll look at it. Now have a look upon how the chapter headings and after that notes of subheading also plays a vital role. So chapter notes, subheading ke notes, these play a vital role. Like here, what to include, what to not include. Here we get the answers for that. Friends, there are explanatory notes to HSN that are given by World Custom Organization in addition to the section and chapter notes so that एक uniformity रहे. 5 volumes आ चुके हैं जो World Custom Organization ने ये दिए हैं. HSN देने का कारण क्या था? अब पता है कहाँ issues, कहाँ जरूरत कहाँ पड़ती है HSN की? I give you an example.
एक मशीनरी आती है, आपको पता है मशीनरी तो सो एंड सो HSN में है, व्हाट अबाउट इट्स पार्ट? उसको मशीनरी पार्ट्स में लेकर जाऊं कि जिसमें मेन मशीनरी है उसमें लेकर जाऊं? कॉम्पोजिट और मिक्स अप्लाई में कैसे करूं? मल्टीपर्पज गुड्स, आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ द केस इन विच द रीसेंट जजमेंट हैज बीन डिलीवर्ड. रिलेज, एक रिलेज आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट है. ये रिलेज नॉर्मली भी यूज होते हैं और ये रेलवेज को भी सप्लाई किए गए कि रेलवेज में यूज करने के लिए. अ मेजर क्वेश्चन अरोज, शुड इट बी क्लासिफाइड एज अ नॉर्मल रिलेज or should it be classified as parts which are used in the railways? Here the classification issue, the notices that I got was आपने agricultural implements के नाम से किया है. There is a different classification of agricultural implements and agricultural machinery. Where to classify those things? So all these classification issues plays a vital role. कैसे डिसाइड करें हम यूज कहां कर रहे हैं? आपको पता है जजमेंट क्या है? हम रिलेज को रिलेज में क्लासिफाई नहीं करेंगे, हम उसको स्पेसिफिक एंट्री रेलवे के प्रोडक्ट्स में क्लासिफाई करेंगे बेस्ड अपॉन इट्स यूज. रेलेवेंस ऑफ नेम ऑल्सो प्लेस. या तो हम साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ले या हम एक जनरल अंडरस्टैंडिंग. आप लोगों ने ओडोमॉस कही, नंबर ऑफ क्वेश्चंस वर डिस्कस लाइक Odomos है, it is available on normal counters. You don't need any prescription. So journal parlance, user understanding also play an important role to determine कि एक particular चीज कैसे classify होनी चाहिए. Friends, GST borrow कर रहा है, हमने already discuss किया. नोटिफिकेशन 1/2017 जब आप खोलते हो तो आपको गुड्स के केस में 6 स्केड्यूल्स मिलते हैं. These are the different 6 schedules जिसमें कि सारे HSN divided है. Both in notification, चाहे 1/17 हो चाहे 2/17 हो, एक लास्ट एंट्री है जो भी हेडिंग सब हेडिंग के बेस पे चलती हैं दोनों नोटिफिकेशन. लास्ट एंट्री एक स्पेसिफिक एंट्री है जो मैंने अभी बताई थी 9801 02 03 04. सर्विसेज में जब आप जाते हो तो आपको सिर्फ एक चैप्टर मिलता है, चैप्टर 99. उसमें तो हमें पता लग गया 8 डिजिट तक जाता है. क्या? हेडिंग, सब हेडिंग, टेरिफ आइटम, लाइक दैट, राइट? चैप्टर, हेडिंग, सब हेडिंग, टेरिफ आइटम. सर्विसेज के केस में 2 डिजिट चैप्टर के, 1 डिजिट सेक्शन का, 4 हेडिंग के, ग्रुप के 5 और लास्ट में सैक कोड इज मेनली ओनली ऑफ 6 डिजिट, whereas it goes up to 8 digits. So this is how we read the goods and the services. Now I'm going to start with general rules of interpretation. Now let me once share with you all the document also, if that permits me. Here it is. See, this is your first schedule to custom tariff act. I don't know whether it will allow me to write on the word or not. I think so, no. See friends, it runs into almost 802 pages. Here it is. वैसे ही दिया हुआ है, 6 headings, dash, double dash, triple dash, and if we keep on moving in it, see, this is only your first part is going on. We are still on chapter number 3. So after this, if I go up here, chapter 4, the notes start coming up. Milk, full cream milk, partially skimmed milk. So milk itself is of various types. Here the notes play an important part. Right? So छोटा सा है, बस 800 pages का, वो भी इसके 5 volumes आ चुके हैं time to time. और lots and lots of jurisprudence is also available. Now let me get back to the PPT once again. Here is the PPT here, right? Okay, so अब हम वही इंटरप्रिटेशन के रूल्स पढ़ने जा रहे हैं कि हमें इसको पढ़ना कैसे है. अगर हम 2 में फंस जाएं तो बाहर कैसे निकलना है, हाउ टू रीड इट. नाउ हैव अ लुक. रूल नंबर 1, रूल नंबर कहता है जी सुखी राम ही है.
दुखी राम ही है। सबसे पहले रूल 1 सेज, अगर तो आपको डायरेक्ट क्लासिफिकेशन मिलता है, वेल एंड गुड, नॉट टू गो टू द अदर रूल्स। हैव अ लुक ऑन द रूल नंबर 1, द टाइटल, यस, बट इट सेज ओनली, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप कहिए टाइटल पढ़ के मैंने डिसाइड कर लिया मोटर बाइक पढ़ के कि ठीक है मेरे बच्चे का मोटर बाइक इसी में आना चाहिए। इट इज ओनली फॉर योर रेफरेंस पर्पस। फ्रेंड्स, किसी भी लीगल केस में इसका कोई वैलिडेशन नहीं है। These are not an evidence. This carries no evidential value when you present it in the court of law. The title of may be sections, the chapters, the sub-chapters are just provided for the reference only. What is more important is the section or chapter notes. Title of the sections and chapters do not carry any legal force. Title is given for you to understand. They do not carry any legal reference. Every chapter is independent. The notes of one chapter cannot be applied to the notes of another chapter interpretation. Moreover, I have tried to include maximum case laws wherever possible of the Honorable Supreme Apex Court and the High Courts. So, as per the case of Simplex Mills, it says the rules of interpretation are to be applied and to move to the further rules only when the things are not clear in rule number 1. So classification is to be first tested on the basis of rule 1. If rule 1 does not resolve your issues, then you go to rule 2. And it also says that the name carries 0 value. Now have a look on it. Now the word is the issue which we are discussing is guitar. अब देखिए गिटार में 2 हैं, आंसर आप लोग देंगे। कहां लेके जाओगे गिटार? 92 में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में या 95 में टॉयज एंड गेम्स में? नाउ क्विक आंसर, वेयर यू विल बी टेकिंग इट? ओके, विनोद जी कहते हैं मैं तो 95 में लेके जाऊंगा, बाकी कहां है? आधे इधर बाकी कहीं नहीं। So we are getting a few mixed answers, 95, 92, more for 95. Yes, it is a toy guitar. Now, I am not saying it. Please read the chapter heading, chapter note itself. आप जब 92 chapter note पढ़ते हैं ना, my dear friends, यहाँ देखिए, आपने 95 दिया, आपने पता है कौन सा रूल लगाया? जाने अनजाने आपने लगाया specific to rule of adjournment. Am I right? Am I right, Ashwini ji, Rahul ji? Lekin the actual reason behind it is the chapter note which specifically says it will not cover the toy instrument or the apparatus as per 9503. So हमें सोचना ही नहीं है. I got one answer also with 92 and a few more. So there where the chapter notes plays an important role. I hope the issue is clear. Let's have a next rule. Look on the next rule. Rule 2A. Rule 2A. Nikhil ji, you again, पता है क्या, थोड़ी सी आदत होती है बोलने की. So I myself say you wherever you feel like. So don't मतलब wait कि भाई I should say, you can please provide your expert comments wherever you deem fit. मैं तब चुप कर जाऊंगी. Everything is perfectly being summed up by you, तो कोई issue नहीं है, आप बिल्कुल continue कीजिए. चलिए, so we would also like to hear a few words from you too. चलिए friends, now moving ahead. Rule 2A. Rule 2A क्या कहता है? अब आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन आता है. क्यों अश्विनी जी, आता है या नहीं आता है? राइट निखिल जी, आजकल जब सब कुछ ऑनलाइन आता है, सब कुछ आता है, तो बच्चे की चेयर भी मंगवाओ ना, तो वो 20 पार्ट्स में होके आती है. I'm discussing 2 examples with you friends which will clarify the rule to you. पहले रूल हाइड कर लूं, फिर आप सब यहां से पढ़ लेंगे और बोलेंगे हाँ यही आंसर है. चलिए 2 एग्जांपल्स देती हूँ. आपने Amazon से एक चेयर ऑर्डर की. चेयर आई पार्ट्स में, आर्म्स अलग, और फिर आप स्क्रू ड्राइवर लेते हैं and you just start fixing that chair so that your child can sit on it. Right? One example. Second example, ऐसे ही
फेरारी कार मंगवाई, फेरारी कार भी अलग अलग पार्ट्स में आई. It was a big issue and it is a very important vital judgment also of BMW car itself, which I will be discussing with you. It came in parts, wheel alag, body alag, engine hai hi nahi, and so on. Now tell me, किस में लेके जाएंगे किस चीज को? पहले एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग जल्दी से, क्या मैं जो आपके पास चेयर आई है, क्या मैं उसको फर्नीचर चेयर के हेड में लेके जा सकती हूँ जो पीसेस में आई है, टुकड़े टुकड़े होकर आई है, नॉकडाउन फॉर्म में आई है, कंप्लीटली नॉकडाउन? माय फर्स्ट क्वेश्चन, यस और नो? यस और नो? फर्नीचर हेड, गौरव जी कहते हैं हाँ जी ले जाइए फर्नीचर हेड में, केतन कुमार जी भी यही कहते हैं. ओके, और वो गाड़ी BMW वो कहाँ लेके जाऊं? ले जाऊं कार हेड में, ले जाऊं कार हेड में जल्दी से. क्यों विनोद जी, दो डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स क्यों? गिव मी द आंसर. Why two different set of rules when you are saying me? You need to provide me the reason, the background for the same. Why two set of rules for both? Let me tell you. Friends, the functional test. But before moving to the functional test, let me come to the main rule. आप सब ने यही कहा, principal component. Vinod ji, I will give it a certain slide words, different words. Functional test. Now have a look. Rule 2A always says, अगर आपका जो प्रोडक्ट डिसेंबल्ड फॉर्म में आ रहा है या अनअसेंबल्ड फॉर्म में आ रहा है, अगर मैं उसको जोड़ दूं तो उसमें सारे इसेंशियल कैरेक्टर है, लाइक द चेयर ऑफ योर ओन चाइल्ड. When you tight it with the nuts and bolts, or a car, आजकल तो बच्चों की कार भी बहुत महंगी आती है. I face the heat, so discussing with you. A car which comes, it comes in totally knocked down forms, and when you join the parts of the car, it is able to perform the essential character. Yes, if the answer to the same is yes, it will go to the head of the same product. जैसे आपने कहा, आप ले जाइए नॉकडाउन फॉर्म चेयर को इन द कैटेगरी फर्नीचर और चेयर्स. पहली बात, रूल 2A पे तभी आएंगे जब रूल 1 फेल हो जाता है. हमें समझ नहीं आ रहा था, we were confused. It says incomplete or unfurnished articles. Article in CKD form is equals to article in the furnished form, provided the Shivaji Works case law says it is able to perform the functional test. अगर तो अब देखो उन्होंने कितना अच्छे से LML के केस में बोला, अगर एक मोटर व्हीकल है और उसमें व्हील्स फिट नहीं है, टायर्स नहीं है, बैटरीज नहीं है, इंजन नहीं है, बाइसाइकिल विदाउट अ सेडल एंड टायर्स है, it will not be able to perform the proper function. Here is the case of BMW India Private Limited, Authority for Advanced Ruling. यहाँ पे सर जो कार आपको दिख रही है, it was only the body, no engine, no wheels, nothing. It was a car even without the seats. So it is an incomplete car. It does not have the essential character. तो इसको हम body of the car, parts और accessories में लेके जाएंगे. We cannot classify it under the heading car. One thing. इसमें issue exemption का था. So they held it that yes, the exemption is available. Right? Second, ऐसी चेयर आती है, आप ज्वाइन करते हो, इस तरह से कंप्यूटर आता है, आप ज्वाइन करते हो, they are able to perform the functional test. Then they will be classified in the same head जो आपने रूल लगाया, ले जाइए फर्नीचर. सेम केस था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इन कैमलिन इंडिया. कैमलिन इंडिया में भी क्या हुआ था, दे मेड असेसी ने क्या किया, कैमलिन ने, इन्होंने कुछ शेपलेस क्रेप ग्लास बनाए, shapeless, and the question arose, should it be covered under the stationary head? क्या इसको कस्टम के जो टेरिफ हेड है 960900 में क्लासिफाई कर दें, या डिपार्टमेंट कहता था इट इज लाइक पिगमेंट्स एंड प्रिपरेशंस यूज्ड इन, ये तो अनप्रिपेयर्ड हैं, ये तो पूरे बने ही नहीं है, these are in unprepared form, and instead of the stationary item it should be classified under 3204, and the rates were different, pigmentations and preparations. It was held by Honorable Supreme Court applying Rule 2A. अब समझ आया क्यों 12,000 केसेस पेंडिंग है.
अप्लाइंग रूल 2A कि अगर एक प्रोडक्ट अनफिनिश्ड भी है बट अगर वो इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स परफॉर्म कर सकता है कैमलिन के कलर्स, तो आप उसको सेम अप्रोप्रिएट हेड में लेकर जाओगे एंड नॉट इन एनी अदर हेड. सो दैट इज व्हाई इन दिस केस द impugned goods only were required to give the shape. They were shapeless, but that does not change their classification. They are to be considered as incomplete or unfinished goods and to be classified in the same head stationery. So this is how I discussed with you the relevance of 2A. Now comes 2B. अब 2B में क्या था कि विनोद जी आपका नाम ही सामने आ रहा है या केतन जी का आ रहा है. चलिए केतन जी से बात कर लेते. केतन जी वेंट टू कोलकाता. सो जब कोलकाता गए तो कोलकाता का एक मीठा पान बहुत अच्छा मिलता था. अब ये मीठा पान जब खाते हैं बोलते इसमें तो कितना कुछ है. पान का लीफ, बिटर लीफ इज ऑल्सो देयर, नट से भरा हुआ है, मिक्सचर्स एंड स्पाइसेस है. Where a particular thing should be classified when it is a mixture or a combination of many things? The answer you all know and you all apply. Main ingredient क्या है? So अब एक बात बताइए, कपड़े में जब क्लासिफिकेशन ढूंढते हो तो कैसे फोन पे आंसर दे देंगे माय डियर फ्रेंड? अच्छा सर ये तो 5% का प्रोडक्ट है, ये तो 12% का प्रोडक्ट है. Until or unless you know the actual composition or the ingredient of that product. और आप मानेंगे मिल्क के ऊपर ही, सेम फ्लेवर्ड मिल्क के ऊपर 2 AAR है, दोनों ने डिफरेंट रेट्स दिए हैं, 5%, 12%. और अभी तो नट्स नहीं एडेड थे, नट्स एडेड होते तो तीसरा रेट भी मिल जाता. Are you getting my point? So a mere item like a milk, a mere item like a chappal. I know I'm using a word chappal because that is what is being used, a sleeper. Why? A chappal is to be classified as footwear, or a chappal is to be classified as an item made up of rubber or rubber products. अब आप सब बोलोगे चप्पल को तो फुटवेयर में करेंगे. जानते कौन सा रूल लगा रहे हैं? Specific over general, but we will move to that rule a bit later. Right now, rule 2B says if it is a mixture or a combination of different products, the main material reference to the goods of a given product are to be checked of such material or substance. And that is what the case of Dhariwal Industries also, where they said Calcutta Meetha Pan, the product contains 70% of the dry dates. Applying rule 2B, it is to be, क्योंकि उसमें 70% dry dates थे, it is to be classified as fruits and nuts and not as a pan masala. So हम तो उसको कैलकटा मीठा पान बोल रहे हैं, but because उसमें 70% dry dates हैं, which is the main product, applying rule 2B, they will be classified under the heading the nuts, fruits and nuts. Have a look on this Supreme Court judgment recently announced in March 2021 itself. And this is what I was talking about, the relays. Relays that were supplied to the railways. The issue arose, should it be classified under normal electric relays? Normal electric relays as per 8536 or railway and railway signaling equipments as per 8608. And it was held that because depending upon the use, remember मैंने बोला था use पे भी देखना है, it is used only as a railway signaling equipment. The Supreme Court came up with the judgment कि ये 86 में जाएगा और 85 में नहीं. So this is the recent judgment by Honorable Court in case of Westinghouse Saxby Farmer Limited. रूल नंबर 3A जो आप सब लगाते हो. अब एक मिक्सचर तो ऐसा है, सब वो खाते हैं ना, व्हाट वी कॉल इट नवरत्न नमकीन, है ना. अब उसमें से अलग करके बताइए जरा कि कितना मूंगफली डली है, कितना ड्राई फ्रूट डला है, कितने वो आलू की चिप्स डले हैं, पोटैटो चिप्स आर देयर, पोटैटो फिंगर्स आर देयर. Can we do so? Can you find out in such a mixture which is the main premium component? अगर तो आप कर सकते तो आप रूल 2B पे रहते. जब आप नहीं कर सकते तो आप आएंगे रूल 3A पे. अब आप बताइए, जब आप हल्दीराम का नमकीन खा रहे हैं,
आप नमकीन खा रहे हैं कि ड्राई फ्रूट खा रहे हैं? You know, that is also one of my favorites too. नमकीन खा रहे हैं. Absolutely, Rahul ji and Gaurav ji. So the heading, which is most specific description, it will go under, अगर सारी specifications equal हैं, so then we will be taking it in the जो most specific है नमकीन, as you all mentioned. Secondly, I give you a number of examples. देखिए, किचन में सिंक लगा है, सैनिटरी वेयर में लेके जाऊं कि आर्टिकल्स ऑफ हाउस होल्ड में लेके जाऊं? विच इज अ मोर स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन? किचन सिंक इज मोर एप्रोप्रिएटली एज अ sanitary wear, right? Then other than normal household articles, specific will rule our journal. Rule 3A says so, जो आप सब normally लगाते हैं. For gents, they use electric shaving machines. The question arose, should it be given under the head shavers or should it be classified under the head electromagnetic, mechanical, domestic appliances? Specific rule over the journal 85.10. Plastic का name plate बना हुआ है. Should it be as a accessory of a motor vehicle or should it be as a other parts of plastic? Accessory of a motor vehicle, a specific to go over general. After this comes the rule 3B. 3B says even if 3A becomes impossible, even आपको specific भी नहीं पता लग रहा, general भी नहीं पता लग रहा, कुछ पता नहीं लग रहा, सब मिक्सचर है, composite जो essential character दे रहे हैं 10% सब कुछ है. When the mixture or a component which gives them their essential character is also no far and is a criteria, so then what this rule says, here have a look on it. Example. So this rule says mixture composite goods which are made up of different materials which cannot be classified as a 3A. जो आप जैसे आपने कहा नमकीन इज देयर मेन प्रोडक्ट, कोई स्पेसिफिक एंट्री भी नहीं मिल रही है कि ठीक है ये स्पेसिफिक में जाएगा या नहीं जाएगा, जो उसका इसेंशियल कैरेक्टर डिटरमाइन करता है उस रूल में उसको ले जाएंगे. एग्जाम्पल, दीना जी शैम्पू. अ क्वेश्चन अरोज, दीना जी का शैम्पू एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है. अब सर अगर मैं इसके इंग्रेडिएंट्स भी चेक करूं, इसमें बहुत सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स भी यूज हैं. So a question arose whether it is an Ayurvedic medicine or it is a cosmetic, and it was classified not as a Ayurvedic medicine because it is normal available. The instant case composition and products, they do not have any sort of they may or may not have curative properties, that is disputed. So as a result, it was classified not as an Ayurvedic product. It came that it is a normal cosmetic product. Likewise, Swad ki goli. I told you I will be Honorable High Court of Rajasthan. The question arose whether it is an Ayurvedic medicine excisable at the rate of 6%. So देखिए, AO ने बोला no, Swad is a confectionery item. इसको 10% का रेट लगाइए. This said no, it is not a confectionery item, it is an Ayurvedic medicine. Reason, check the ingredients. 97%. What they said, 97% of the sugar, rock salt, black namak, citric fruits, cumin, zira, and so on. So they said because इसमें 97% जो है वो sugar element involved है. Likewise, Dant Manjan, which you use. So we have a number of examples where all these products should be classified as. Now let me come to a very common example, which is classification of sarees. Okay, now you tell me, sarees are what? Is it a ready-made garment or it is merely a fabric? Tell me, sari is what? Ready-made garment or a fabric? जी क्या है साड़ी?
कुछ तो लिख दो, दोनों में से एक ही होगा। अच्छा, विनोद जी कहते हैं ये तो फैब्रिक है। एनीबडी हु सेज? केतन जी कहते हैं रेडीमेड गारमेंट्स है। नरेश जी फैब्रिक। अच्छा, वंशराज जी सेज रेडीमेड गारमेंट। राहुल जी सेड फैब्रिक। सो रेडीमेड गारमेंट सर, साड़ी इज अ फैब्रिक। हेमंत जी, मोहित जी, साड़ी इज अ फैब्रिक. Why so? It comes with a blouse which is unstitched, and a sari cannot be worn without it. Sari needs a fall. Sari has been held as a fabric. It is not a ready-made garments. And now you see, if sari is above 1,000 rupees, 5,000 ki sari hai, the rate would not be 12%. The rate would be 5%. Here it makes the difference. What about 3-piece dupatta set? The 3-piece dupatta set has been held to be semi-stitched hai, to bhi bata dijiye. Held to be fabric. Have a look on the, sir, there is an AAR. I am not confined to that AAR, but I mentioned it because nobody should feel कि भी triple AR थी, आपने discuss नहीं की. I am putting a cross over this, so but I've just mentioned it because it was there. However, there is a proper circular and applicable of GST on 3-piece ladies dupatta set. They have held it to be a fabric, respective heading as fabric, and will attract 5% of GST, because although the shirt is unstitched, or it is semi-stitched, it cannot be directly worn, and they have particularly by the circular, they have classified it as a fabric. Moving ahead, rule अभी हम 3B पर थे. Now comes the rule, the next rule which says अगर 3A 3B भी नहीं लगा, all are equally applicable. Later is the better. आज की जनरेशन पिछली जनरेशन से ज्यादा बेटर है. Last in numerical order, which occurs last. अब देखिए उन्होंने महिंद्रा एंड महिंद्रा के केस में क्या बोला, 87.03, 87.04, both are equally applicable. 87.04 will be given the benefit. Rule 4, अकिन rule. टायर्ड तो नहीं हो गए सर? चले आगे. So बस खत्म होने वाले हैं. Just a few rules are left, and then we will discuss certain other things. Rule number 4, अकिन rule, जो ज्यादा क्लोज है. अकिन जो ज्यादा मिलता जुलता प्रोडक्ट है. एग्जाम्पल देती हूँ. आप सब ब्रेकफास्ट में या अदरवाइज सेवियां खाते हैं, वर्मीसेली. डू यू ईट द वर्मीसेली? कुछ खाने की बात कर लें, कहीं जाने की बात कर लें. वर्मीसेली, हैव यू ऑल ट्राइड दैट? नमकीन सेवियां, मीठी सेवियां, right? In our house, so we cook it like anyways, by adding peas or by adding sweet. So friends, ऐसा ही एक dish है which is called as अदा. So question arose कि भाई अदा के नाम की तो कोई एंट्री ही नहीं है कि मैं इसको, ये एक स्वीट खीर जैसी है जिसकी कोई एंट्री नहीं है. रेवेन्यू सेज इसको रेजिडुअल एंट्री में ले जाओ, 18% रेट लगा दो. The question arose, no, Ada is akin to सेवियां, वर्मीसेली. कोई नहीं खाता लगता मुझे वर्मीसेली. यहाँ मीठी सेवियां, सेवियों की जो खीर बनती है, अदा इज अकिन, मिलती जुलती चीज ही तो है, नाम ही तो बदला है. वही राइस फ्लोर, वही मैदे के मिक्सचर से बनी है जिससे वर्मीसेली बनती है. एंड सी द डिफरेंस, 5% rate or 18% rate. So applying rule 4, the other was classified under the HSN code 1902, attracting 5%, and not the residual entry attracting 18%. A single percentage plays a vital role. Rule number 5, simple. एक बॉक्स आ रहा है, एक बहुत ब्यूटीफुल सी रिंग आप गिफ्ट कर रहे हो किसी को, बॉक्स साथ में आ रहा है, कॉम्पोजिट सप्लाई. अगर कोई पैकिंग मटेरियल प्रोडक्ट के साथ दिया जाता है, प्रोडक्ट 5%, पैकिंग मटेरियल 18%, बट रूल 5 सेज
पैकिंग मटेरियल अगर एक उसी पर्टिकुलर वो रिंग की शेप में ही बना है, उसमें रिंग ही फिट हो सकती है, वो गन की शेप में बना है, उसमें गन ही फिट हो सकती है, वो एक गिटार की शेप में बना है, उसमें गिटार ही फिट हो सकता है, वो एक कैमरे की शेप में बना है, उसमें कैमरा ही फिट हो सकता है. Give it as a box along with the product composite supply. उसको different 18% पे classify नहीं करेंगे. I give you one more example. In a very beautiful jar packing was given certain sachets of green tea. The rate of green tea will apply on the packing material itself. But अगर आपको लगता है packing material has a number of uses, it can be multi, then a question may arise. But when it is meant for that specific purpose, ring की shape में उसी के साथ जा रहा है, then the question does not arise. Right? So ऐसे ही एक एग्जाम्पल है आपके सामने, मल्टीमीडिया स्पीकर्स थे. सो मल्टीमीडिया स्पीकर्स में करूं, लाउड स्पीकर्स में करूं 1822 में, या साउंड रिकॉर्डिंग और रिप्रोड्यूसिंग एपरेटस में करूं. इट वाज हेल्ड, अगर उसमें कोई स्पेशल एडेड फीचर दिया गया है, इट डज नॉट चेंज द करेक्टर. उसमें यूएसबी भी है, उसमें एसडी कार्ड भी है, उसमें एफएम रेडियो भी है, बट दैट डज नॉट चेंज द करेक्टर. लाइक आई गेव यू एग्जांपल्स. स्पीकर तो स्पीकर ही है. पढ़ रही हूँ राहुल जी, गिव मी अ मिनट, लेट मी फिनिश दिस टॉपिक. अ गुड क्वेश्चन, अभी आई जस्ट टेक इट. नाउ द क्वेश्चन कम्स माय डियर फ्रेंड्स, स्पीकर तो स्पीकर ही हैं. अभी मैंने कहा था कैमरा और अ मोबाइल फोन विद अ हाई डिग्री ऑफ कैमरा. A mobile phone is a mobile phone, although it has some additional features. So the last rule, rule 6 says that okay, अगर the head sub, अभी जो हमने बात की थी, the subheadings within the same heading are comparable with each other, but not with the subheading or any other heading of other heads. Heading is to be determined first and then the subheading has to be ascertained. Sir, हर chapter के chapter notes, उसके अपने चैप्टर नोट्स है, अपने सब हेडिंग नोट्स है. अगर आप क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स करना चाहते हैं, उनके सब हेडिंग, एनी रिलेटेड सब हेडिंग नोट्स, वो सारे इंटरप्रेट करेंगे, सेम लेवल पे कंपेयर करेंगे, 1 with the 1, 2 with the 2 and 3 with the 3. A number of questions come. Canned pineapple slices है, कहाँ लेकर जाओ? Fruits and nuts or 0811 fruits and nuts uncooked. So there was fruits and nuts that are a part, edible parts of the plant. Sir, this was the case. जो rings वहां पे आपके लगे हैं, and it was held that it will be classified under 0811 head. So it has added sugar. What it can be held? Fruit, of course, pineapple is a fruit, cooked or uncooked, whether containing the sugar or not. So we have a number of judgments. I discussed the case of camelin also, certain bitter leaf cases also. But what is the basic criteria? एक तो my dear friends, हमें rules help करते हैं. Rules help करते हैं. Other than the rules, अब ये देखिए, softy, soft serve. The question arises, yes, will it be classified or marked as a normal or will it be a part of ice cream itself? Kyun? They held that, and it was also the question before the Supreme Court whether soft serve is to be classified as 2105, rate 18%, or it is to be classified at the rate nil. And they held that soft serve ice cream is to be classified. What they held, कि जो soft serve ice cream है, that is relating to the miscellaneous edible preparation attracting 16%. And not under which contains your ice cream and so on. So such questions which arise, what is the base of these questions? Have a look. Other than these rules of interpretation, we have to check the end or the functional test, which is very, very important. स्क्रूज हैं, यूज कहाँ हो रहे हैं, रिलेज हैं, यूज कहाँ हो रहे हैं, डिक्शनरी मीनिंग क्या है,
इंटेंशन ऑफ लॉ क्या है, और हेल्थ केयर में भी सर कितना क्यूरेटिव इफेक्ट है। आपका यही इश्यू अराइज हुआ था कि कहाँ क्लासिफाई करें, उसके लिए मेडिकल प्रैक्टिशनर की रिसिप्ट चाहिए या नहीं चाहिए, लिमिटेड पीरियड यूज है, टेक्निकल की ओपिनियन चाहिए या नहीं चाहिए, such other things plays a vital role. A number of case laws I have reproduced here which talks about कौन सी टेबलेट, कौन से शैम्पूस आयुर्वेदिक होंगे कि नहीं, हाई सैनिटाइजर्स, कितने परसेंट ऑफ अल्कोहल उसमें प्रेजेंट है. Not only this, here is your Odomos case also. And they said was not normally prescribed as a medicine. It is normally sold on shops and establishment. Hence, it is not it is a cosmetic product classifiable under 18%. Now, my dear friends, not only this, a question arises कि एक particular product goods है या सर्विसेज हैं. अब इसी के साथ मैं राहुल जैन जी का क्वेश्चन भी लेती हूँ. उन्होंने बोला सेलिंग कर रहा हूं और डिलीवर कर रहा हूं मैं रेडीमेड गारमेंट्स अपने टेम्पो में, और मैं सामने वाली पार्टी से फ्रेट चार्ज करता हूं. वेरी वेरी कॉमन इशू इन द सेल बिल. राहुल जी, नाउ लिसन, दो चीजें हैं. पहली बात, आपका मेन काम जो है वो आपका गुड सप्लाई करना है. आप जो फ्रेट नीचे चार्ज कर रहे हो, दैट पार्ट टेक्स द कैरेक्टर ऑफ composite supply. 5% rate will be applicable. You are not a GTA who is issuing a consignment note. One thing. Second, it is not a separate service also. It is a composite supply. Second, there is a particular entry, I think so, serial number 9 or 21, 21, I think so, निखिल जी, जो exempt करती है अगर आप एक GTA नहीं है. 21A है शायद, 21 और 9 I just can't, which says कि अगर आप एक GTA नहीं है और आप अगर फ्रेट, किसी को फ्रेट की सर्विसेज दे रहे हैं, that is exempt. That is exempt. Now listen Rahul ji, according to me, what we are practically following, we are treating it as a composite supply. हम 5% का उसके ऊपर टैक्स पे करते हैं. अगर आप इसको सीरियल नंबर 21, राइट विनोद जी, 21 में ही था मुझे, ग्रेट, थैंक यू. सो सीरियल नंबर 21 से ये एक एग्जेम्प्ट ट्रांजैक्शन भी हो सकती है. 18% का रेट अराइज नहीं होता. यू आर नॉट अ पर्सन हु इज डीलिंग इनटू इट, सो मोर लाइकली इट इज अ कॉम्पोजिट सप्लाई टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 5%. बट बिकॉज ऑफ जीटीए नहीं है, सीरियल नंबर 21 कहता है, कई बार हम क्या करते हैं, पीछे आप तो अपना टेम्पू यूज कर रहे हो, कई बार हम टेम्पू हायर करते हैं, आगे क्लाइंट से उसके चार्जेस रिकवर कर लेते हैं. इन दैट केस भी हम जनरली 5% कलेक्ट करते हैं और जो पीछे दिया होता है उसका इनपुट ले सकते हैं. अदर वे अराउंड इज, क्योंकि 21 में ये एंट्री एग्जेम्प्ट है, आप आगे से कलेक्ट ना करिए और पीछे वाला इनपुट भी मत लीजिए. But the most viable way it is a sort of composite supply, hence charge at the rate of 5%. Rahul ji, any doubt, or Nikhil ji, any other view? You are most welcome for the same. Absolutely agreed with it, and I just want to add कि हम जब section 15 के valuation में जाते हैं, तो section 15(2) inclusion के अंदर it clearly mentions that we have to add any packing charges or transportation charges, ancillary items. So I think उसके अंदर वो कवर हो जाएगा. तो Absolutely sir, even the reimbursement section 15 तो सारी reimbursements भी ऐड करा देता है. So जब हम CAs भी जाते हैं बैंक ऑडिट्स पे, तो reimbursements also gets added. Great राहुल जी. चलिए, so अभी भी यहीं पे यही केस था. हेल्थ केयर सर्विसेज, सर वो कहते हैं आपके पास पेशेंट आता है, वो कुछ भी ले, रूम रेंट पे करे, आपसे हॉस्पिटल 10,000 चार्ज करता है, 2500 हॉस्पिटल रख लेता है, 7500 डॉक्टर को देता है. रिटेंशन चार्जेस ऑफ डॉक्टर इज आल्सो अ कंपोजिट सप्लाई. द मेडिसिकमेंट्स, द ड्रग्स, द स्टेंट्स, द मटेरियल्स, whatever they are providing is a composite supply, hence exempt for the patient under entry number 74, क्लासिफिकेशन इशू. लेकिन अगर आप मेडिसिन बाहर वाले पेशेंट को दोगे या इन पेशेंट को सेल करोगे, दैट इज गुड्स, टैक्सेबल. सेकेंड, स्कूल्स. अब यहां पे देखिए, स्कूल प्रोवाइडिंग ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कर रहे थे.
अगर तो फ्रेंड्स ये सर्विस होगी तो एग्जेम्पशन के लिए क्लासिफाई होगी। अगर प्रिंसिपल सप्लाई से एग्जेम्प्ट है तो उसकी कॉम्पोजिट सप्लाई भी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। बट अगर आप उसकी क्लासिफिकेशन करेक्टली नहीं करते हैं, अब यहाँ पे देखो उन्होंने कहा जी ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना स्कूल्स में एक एग्जेम्प्ट सर्विस है। ओके, अगर वो कोई पोस्ट एग्जामिनेशन सर्विस भी दे रहा है, इट इज related to the composite supply. Hence, if the principal supply is exempt, the composite also becomes exempt. Second, question paper printing. अगर तो मैं इसको goods में classify कर देती ना, the things would have been different. No exemption. आपको पता है schools, colleges, uniforms बेचे, canteen के products बेचे and something, they are not exempt directly. और उनका input भी exempt नहीं होता है. School to children is exempt, to the students is exempt, but their inputs are not exempt. Here, the school was taking the services, input services of question paper printing. It is a service related to examination, hence exempt. और अगर मैं इसको goods में classify कर दूं, exemption will go away. Likewise, अगर मैं बात करूं OMR sheets, books not. Yes, printing of question paper or OMR sheets, not goods, services, hence exempt. It is the importance of the classification. So, online content supply हो रहा है, general, अब आजकल योगा शिविर्स बहुत लगते हैं, right? योगा शिविर में अगर वो योगा के साथ कोई और एक्टिविटी भी कराते हैं, it is not a composite supply. Zumba is going on or certain other services, that is not a composite supply. उसके ऊपर टैक्स लगेगा। एग्जेम्पशन सिर्फ और सिर्फ योगा सर्विसेज पे है। वन मोर एग्जांपल, बोर्डिंग स्कूल है, दो तरह की सर्विसेज देता है, एक एजुकेशन से रिलेटेड, हाँ अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है स्कूल में, दैट इज अ कॉम्पोजिट सप्लाई। बच्चा पढ़ने जाता है, साथ में म्यूजिक सीख लेता है, म्यूजिक इज ऑल्सो अ टीचिंग, इट्स ओके। वो दो तरह की क्वालिफिकेशन देता है, एक रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ है, दूसरी रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ नहीं है। Segregation होगा, you will not classify it as a bundled service, no. Which is recognized by law is acceptable, which is not recognized by law, these are two separate courses, these cannot be clubbed together. 12AA का एग्जाम्पल मैंने आपको ऑलरेडी दिया। अब क्वेश्चन अराइज होता है, होगा क्या? होगा क्या सर? वैल्यूएशन और रेट ऑफ टैक्स से रिलेटेड इश्यूज इवन प्रोविजनल असेसमेंट के लिए भी जा सकते हैं। 90 डेज में डिसीजन आता है। अभी मैं वो बात नहीं कर रही विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द ऑफिसर्स कि भाई AAR के रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं या प्रोविजनल असेसमेंट के डिलेज कितने हो रहे हैं, बट यस ऑन द इशू ऑफ वैल्यूएशन एंड रेट ऑफ टैक्स यू कैन इवन ऑप्ट फॉर द प्रोविजनल असेसमेंट। सेकेंड कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा रेट क्या लगना है। अब देखिए इसमें क्लासिफिकेशन के इश्यूज पे बहुत प्रोविजनल असेसमेंट होता था, प्री GST रिजीम में भी होता था। आपको समझ नहीं आ रहा मेरे प्रोडक्ट में 12% रेट है, 18% रेट है, अब प्रोविजनल अटैचमेंट असेसमेंट अप्लाई कर दीजिए, तब तक आप अपने गुड्स की क्लियरेंस करते रहिए। ऑफिसर टाइम ले लेता है, उसके बाद वो आपकी फाइनल असेसमेंट कर सकता है विद इन अ पीरियड ऑफ 6 years और एक्सटेंडेड टाइम पीरियड। Your business does not halt. The decision comes within a period of 90 days. होगा क्या? अब यहां देखिए सेक्शन 122 पीनल एक्शन भी होगा। ए पर्सन मिस्टर ए सीमेंट सेल करता था विच वाज एट 28%। ही क्लास, आजकल वो पेवर ब्लॉक टाइल्स बहुत आती हैं, द इशू इज वेरी मच हाईलाइटेड दैट वेयर द टाइल्स शुड बी क्लासिफाइड एज। अगर वो उसको सैंड के प्रोडक्ट में लगा के बेचता है, 5% लगाता है, classification issue, evasion of 23% of tax, you can be subject to penalty with 100% of tax under section 122. Other than that, अब देखिए दो implication होंगी improper classification की। क्या? या तो राहुल जी टैक्स शॉर्ट पे हो जाएगा, क्यों विनोद जी? या एक्सेस पे हो जाएगा। और पे जैसे अभी हम साड़ी पर लगा रहे थे, इट कैन बी एक्सेस पेड ऑल्सो। अगर तो शॉर्ट पे हुआ, पेबल 18%, पेड 12%, आपने शॉर्ट पे किया, डिपार्टमेंट इंटरेस्ट भी लगाएगा और पेनल्टी भी लगाएगा सारे सालों के लिए। और आप पता है कहां फंसेंगे? आप आगे से नो रिकवरी, आप
आपने 12% पे किया, आपको डिपार्टमेंट ने 18 लगा दिया, आपको पॉकेट से देना पड़ेगा। और हो सकता है अब आप परचेजर से उसकी रिकवरी भी ना कर पाए और टाइम निकल गया हो। क्या होगा, आपका ग्रॉस अमाउंट चार्ज इंक्लूसिव ऑफ दैट टैक्स रेट माना जाएगा और आपको अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा। अगर आपने एक्सेस पे कर दिया, आपको रिफंड का एक्सेस भी नहीं मिलेगा, कारण अनजस्ट एनरिचमेंट। तो जो अब पता क्या होता है, मार्केट में तो कई बार हम ऐसे रेट देते हैं, 1000 रुपए की चीज है जी इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, आपने पे कर दिया 18% से, पेबल था 12% से। आप बोलते हो मैंने तो रेट गलत। सर मेरे पास इतने कॉन्ट्रैक्टर्स के केस आए हैं, दे हैव पेड एट हायर रेट, दे वर सपोज्ड टू पे एट लोअर रेट, नाउ दिस इज रिफंड। क्वेश्चन, you cannot even apply for the refund because वो कहते जी हमने तो रेट 1000 रुपया इंक्लूसिव दिया था, 100 करोड़ का इकट्ठा कॉन्ट्रैक्ट किया था, मेरी पॉकेट से 18 चला गया, अब मैं क्या करूं? कुछ नहीं कर सकते। क्यों? इंक्लूसिव माना जाना था, पहले डिवाइडेड बाय 112 इंटू 12 होना था, आपने डिवाइडेड बाय 118 इंटू 18 कर दिया, आपकी इनकम कम हुई, लेकिन अब रिफंड नहीं मिलेगा। क्यों? अमाउंट रिकवर हो चुका है, अप्लाइंग द पीरियड ऑफ अनजस्ट प्रोपोजिशन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। Excess amount collected and deposited to the government is an amount, it is not an tax. And my dear friends, प्री जीएसटी रिजीम का ज्यूरिस्प्रूडेंस भी है, और बहुत लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हमारे बाय सेलर ने 18% रेट लगा दिया, लगना 12% था, क्या मुझे क्रेडिट मिलेगा 18% का? द आंसर एज पर द प्री जीएसटी ज्यूरिस्प्रूडेंस इज नो। द 12% का रेट, ऑल्दो आपने बिल में 18% पे किया है, बट अ लिटिगेशन में अराइज ऑन दिस पॉइंट कि जो आपका एक्सेस दिया दैट वाज एन अमाउंट एंड नॉट एन टैक्स। परचेजर को भी एक्सेसिव 6% का क्रेडिट डिनाई किया जा सकता है। दीज आर द जजमेंट ऑल्सो ऑफ हाई कोर्ट ऑफ मद्रास इन द सेम रिस्पेक्ट। ये कुछ अलग जजमेंट थी जो अभी इस जीएसटी रिजीम में आई, उन्होंने बोला कि हम डिनाई नहीं करेंगे, but all the previous jurisprudence a question arise कि करेंगे या नहीं करेंगे। और ये परोंठा और परोटा वाली जजमेंट तो सबने सुनी होगी, परोंठी is not chapati, right? And we might have laughed on it. Friends, that परोंठा was talking about the instantly available, जब हम फॉरेन जाया करते थे। अब तो कोरोना ने क्या हांगकांग क्या मकाओ सब कुछ खत्म कर दिया। So we used to, those vegetarian people like me, we used to carry some certain food preparation, okay, you just heat up and you can grasp it. The question was related to that, and that is why they said 18% will be chargeable. The question is not only limited to certain issues. आप आज बात करते हो लैंड और डेवलप्ड प्लॉट्स की। Friends, this is also a classification issue. Land, ये ऐसा लैंड और क्या डेवलप्ड प्लॉट्स, क्या ये एक ही चीज है? क्या क्लासिफाई एक में ही होंगे? क्या कन्वर्जन? सर अगेन अ क्लासिफिकेशन इशू। इज अ डेवलप्ड प्लॉट अ प्लॉट? टू व्यूज आर देयर। वन सेज आपने लैंड डेवलप करके दिया, मैं डेवलपमेंट खरीदने तो नहीं आया, इट इज अ कॉम्पोजिट सप्लाई। बिकॉज इट इज अ कॉम्पोजिट सप्लाई, लैंड पे टैक्स नहीं है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। डिपार्टमेंट सेज नो, इट इज नॉट अ कॉम्पोजिट सप्लाई। नॉर्मल लैंड का रेट, क्वेश्चन अराइज, रेट बढ़ गया तो क्या हुआ? लैंड 50,000 का भी होता है, 55,000 का भी होता है, लैंड इज अ लैंड। द अदर व्यू सेज नो, प्लॉट इज नॉट इक्वल्स टू डेवलप प्लॉट। और जितनी जजमेंट्स आई हैं, मे इट बी नार्ने कंस्ट्रक्शन बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, or we have Mark Spaces AAR, they all says development charges are taxable. So the non-litigative view is made separate. Yeah, here it is, Narne Construction and Dipesh Kumar and so on. यही इशू आपके सोलर पावर में भी आया था, घबराएं मत, बस लास्ट ही है। सो सोलर पावर जनरेशन में भी आया था। सोलर पावर जनरेशन में भी कॉम्पोजिट सब, क्यों? अब ऐसा था कि निखिल जी ने घर पे सोलर पावर प्लांट लगाना था, अब बोलते ऐसा थोड़ी है परचेज एक से करूंगा, इंस्टॉल तू कर दे। नो, from whom we purchase, we same to get it installed at our house also or at our office also. Question arose, जो पैनल है उसकी कॉस्ट, उसका टैक्स रेट 5%, और
उसका इंस्टॉलेशन का रेट 18%, बन जाती थी कॉम्पोजिट सप्लाई और रेट लग जाता था 18%। अलग अलग जजमेंट्स आई, अलग अलग AARs आई, ट्रिपल ARs आई, किसी ने कहा 5%, किसी ने कहा 18%। ह्यू एंड क्राई था इस इंडस्ट्री में कि 18% देना पड़ता है। सेपरेट एग्रीमेंट भी करने की कोशिश की, नहीं होते सर, क्रॉसफॉल, ब्रीच कॉन्ट्रैक्ट, EMC की जजमेंट, बहुत कुछ आ जाता था बीच में। गवर्नमेंट ने खुद से पहली बार वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का, दूसरी बार कार में भी किया था, दूसरी बार वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का रूल तोड़ा और कह दिया वैसे तो हम वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में सेग्रीगेशन नहीं करते, गुड्स इज गुड्स, द वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इज अ सर्विस, चाहे जितने मर्जी गुड्स हो। लेकिन यहां पहली बार एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में गवर्नमेंट ने बाइफिकेशन दी 70-30, 70% will be deemed goods and 30% will be deemed service. आप अब अलग अलग रेट लगाइए, 5% और 18%. At the end, I have put on this WHO document also, which talks about the classification of HS and so on. और ये सबने देखा होगा जरूर. So classification issues are grave issues. Today we could टेक अप एन आइडिया कि अच्छा कोई रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है, हम सेटा को कैसे रीड करते हैं, कहां से 6 डिजिट एंट्री मिलती है, कैसे कंपेयर करना है, हाउ the rates, the things plays a vital role and what can be the consequences for the same. Over to you, Nikhil ji. I just stopped sharing the screen and a question is just popped up from Vinod Sharma ji. हाँ, विनोद जी का क्वेश्चन ले लेते हैं पहले। इट इज रिलेटेड टू द सेल ऑफ डेवलप्ड प्लॉट। तो आई थिंक ऑल्दो मैम ने ऑलरेडी बताया उसमें कि भी हम कैसे उसको सेग्रीगेट करके एग्रीमेंट हम सेग्रीगेट कर लें, सेल ऑफ लैंड का सेपरेट कर लें और डेवलपमेंट चार्जेस का सेपरेट कर लें। सो एनीथिंग यू वांट टू ऐड? राइट, बिल्कुल राइट विनोद, निखिल जी ने बोला। विनोद जी ऐसा है, अब देखिए 3 जजमेंट्स आई। पहली जजमेंट मार्क स्पेसिस की, कोर्ट ने अपने आप 25% वैल्यू निकाल दी कि हम इसको डेवलपमेंट सर्विसेज में ले जाएंगे। अगर तो आपको लगता है कि कोई जनरल कोई क्राइटेरिया है कि ठीक है मैंने पीछे डेवलपर को इतनी कॉस्ट दी है, आगे इतने में डेवलपमेंट चार्जेस रिकवर कर रही हूँ, सो गो अकॉर्डिंगली, अपने आप 2 सेपरेट एग्रीमेंट्स बना लीजिए, इतने % कॉस्ट है डेवलपमेंट की, लेस्ट इज द लैंड वैल्यू, उसको अलग कर दीजिए। क्योंकि अगर कोर्ट्स अपनी इंटरप्रिटेशन लगाएंगे तो द बाइफिकेशन कैन बी अनबायस्ड। और दीपेश कुमार की जजमेंट से तो मैं बिल्कुल अग्री नहीं करती हूँ। उन्होंने क्या किया, पूरे के पूरे पे ही लगा दिया फुल वैल्यू पे, which is not justifiable and which I don't support. So at least to avoid such sort of confusions, we can make some separate agreement depending upon what is the cost we are incurring, and accordingly by adding 10%, 15% margin, we can say ये हमने सेल और डेवलपमेंट चार्जेस रिकवर किए हैं, अगर आप कोई लिटिगेशन में नहीं जाना चाहते। हाँ, इसमें कॉम्प्लिकेशन तब आता है जब कोई जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट हुआ है, बिल्डर अलग है, लैंड ओनर अलग है, वहां पे जो सेग्रीगेटेड एग्रीमेंट है फिर वहां पे थोड़ा सा इशू है। Yes, absolutely. Next query is from Naresh ji. जी, नरेश जी का क्वेरी है, सेलिंग सेम प्रोडक्ट बाय डिफरेंट सप्लायर्स एट पर्टिकुलर रेट बट क्लासिफिकेशन शोज अ डिफरेंट रेट टू बी चार्ज, इफ आई डू दैट नॉट एबल टू सेल, व्हाट टू डू? It's as good as a decision between whether we should go legally, कि legally क्या करेक्ट प्रैक्टिस है और कमर्शियली मार्केट में क्या ट्रेड प्रैक्टिस चल रही है। तो राइट, एब्सोल्युटली राइट। नरेश जी, आपकी क्वेरी में एक ऐड ऑन करती हूँ, मैं एग्जांपल भी देती हूँ। मेरे क्लाइंट है रिनाउंड वन, मतलब क्यों एग्जांपल दे रही हूँ बताती हूँ, नाम नहीं लूंगी, बट वो एल्बम्स का काम करते हैं, राइट, वर्ल्ड क्रॉस, इंडिया क्रॉस उनकी एल्बम्स जाती है। इट्स वन ऑफ द रेनाउंड कंपनीज एंड दे वर चार्जिंग 18% GST। वो एल्बम्स में जब फोटोज वगैरह लगा के देते हैं, क्योंकि मटेरियल का इज नॉट दैट रेलेवेंट, आप शादी क्या वेडिंग फोटोग्राफी का पिक्चर्स दे रहे हो। ही यूज्ड टू सप्लाई द प्रोडक्ट एट 18% rate. All his competitors were supply the products at 12% rate. The issue matter is still pending with the Honorable Supreme Court, and my client says I am facing the difficulty by applying a rate of 12% where my competitors are applying 18%, where my competitors are applying a rate of 12%. So again, नरेश जी, ये मत सोचिए जब नोटिस आता है तो सबको इकट्ठा आता है।
Example, the contractor. In our contract cases, हमारा एक क्लाइंट है, वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर थे, MES के कॉन्ट्रैक्ट्स करते थे, उनका हमने क्लासिफिकेशन जहां 40-60 था 40-60 किया, प्री सर्विस टैक्स रिजीम की बात कर रही हूं, और जहां 70-30 एप्लीकेबल था वहां 70-30 किया. Now the notices were issued to all the contractors in Punjab, bulk notices. But still the party came out with the clean hands. फास्टवे के इश्यूज हुए, फास्टवे का केस हुआ, सब टेलीविजन ऑपरेटर्स, केबल ऑपरेटर्स को नोटिसेस गए. सो डोंट थिंक व्हाट इज द मार्केट प्रैक्टिस, प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट द करेक्ट रेट and it will definitely pay you. I know initially it may be difficult to face the competition, but ultimately the loss which will be arising at the later stage is more important. Other than that, you can still opt for the provisional assessments, or you can opt for the AARs if you deem fit. Again, I put a question mark over there because provided you get a correct ruling, so that can also be of a help. Right, Nikhil ji, anything else? और कोई query तो नहीं है, but just to sum up the session, I think it cannot be better session with so many practical examples. And covering all issues including the rules of interpretation. तो definitely जो मैम ने कहा कि हम apply तो करते हैं practically, but we don't know the background of it. आज हमें उसका पूरा detailed background मिल गया. And we also covered the implications, most importantly on the ITC part की जहाँ पे अगर rate of tax गलत है, अगर ज़्यादा मैंने tax pay कर दिया तो उस angle से recipient को there will be a trouble from the ITC point of view. Definitely it will be litigated. So I think that's a wonderful session, and I think all participants would agree on that. And one thing more, एक नया सफेयर भी मिल गया, क्लाइंट को फ्री में एडवाइस नहीं देना है. Charge your fee, you look for the avenues, so say them to sit with you, find out the ingredients, find out, sit, उसको भी तो पता लगे, एक CA को भी और एक टैक्स प्रोफेशनल को भी कितना टाइम लगता है रेट्स ढूंढने में. It's not a minutes job. And you know some people ask you, इस चीज का क्या रेट होगा, कितने % पे क्लासिफाई होगा. इट्स नॉट लाइक दैट. मेक वर्थ ऑफ योर सर्विसेज. This is a very good avenue. Lots of notices are falling into it, which goes up to huge amount of litigations, and you all need to charge for it. You don't give your services in free. This is also one of the additional areas where you can practice. बुक्स का भी मैंने बताया, बहुत अच्छे इस पे आते हैं, बहुत एक्सपेंसिव बुक्स आती हैं. Particularly, people charge 50,000 to 1 lakh for such things, for providing such sort of consultation. So, and I'm very thankful. Of course, Nikhil ji's presence, it made it all more beautiful and gave me a confidence also of his presence at my back. And secondly, to all the wonderful participants for their wonderful participation and their wonderful words. Over to you, Nikhil ji. Yeah. So if Sumit ji is there, otherwise we can conclude the session. Yes, Nikhil ji, I am there. Yeah. I am listening to ma'am and your query discussion, and it was wonderful and discussion. I think Nikhil bhai, all queries has been discussed. Yeah, all queries have been discussed. Yeah. So really thankful to both of you, and especially thanks to Achal ma'am. Thank you, sir. Nikhil ji also supported me the best, and thank you so much to you also for this opportunity. Thank you very much, ma'am. Thank you, and especially thanks to you. And once again, happy anniversary, and that this day you have given time. So no, it's sir. सारा दिन काम ही होता है. So after 12 years of marriage, the anniversary is आपके सामने ही है. Definitely. Or for a professional, it is always a matter of. For a professional, always matter कि हमारा वर्क में इन्वॉल्व होता है, चाहे वो बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, हम लोग yes, में लगे होते हैं. It's never ending. You have your professional commitments, right? So thank you very much, निखिल जी, आपका भी और सभी पार्टिसिपेंट का. And this video will be hosted on the YouTube. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. Okay. Thank you. Please Thank conclude you, the Nikhil ji. meeting. Okay.